लेकिन चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। समित चौहान हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। समित, आगे बढ़ने से पहले आपकी कॉल निफ्टी पे लेते हैं सबसे पहले, और बैंक निफ्टी 19,000 के ऊपर निकलता हुआ आज दिखाई दिया, और निफ्टी भी आप देखिए तो दिन के हाइस पर वापस लौटने की कोशिश कर रहा है। हालांकि शुरुआती लेवल पर वापस लौटने की कोशिश कर रहा है कहना चाहिए। दिन के हाइस तो अभी यहाँ से काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या दिखता है आपको? देखिए, क्लियरली डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अगर हम देखें तो निफ्टी में हर एक इंट्राडे डिप जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। 8650 8660 के पहले कोई भी एक मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमें लग रहा है कि फर्स्ट वो लेवल आने के काफ़ी चांसेस है। हम मेंटेन कर रहे हैं हमारा पॉजिटिव बायस, और ट्रेडर्स को कोई भी इंट्राडे डिप आता है तो वहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। इनफैक्ट जो भी इंट्राडे सपोर्ट्स है वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, और उसमें कन्विक्शन ज़्यादा आ रहा है वो बैंकिंग स्टॉक्स को देख के ही आ रहा है। बैंक निफ्टी 19,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट जैसे मोमेंटम है, और अगर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, अगर ये तीनों प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक जो हेवी वेट्स है जो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वो देख के हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी 19,400 19,500 के लेवल भी टेस्ट कर सकता है। सो फिलहाल तो आप कोई भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कीजिए, और इनफैक्ट मोमेंटम ट्रेडर्स इसमें फ्रेश बाइंग पोजीशन भी ले सकते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। चलते हैं वहीं। Strategy is kicking and so forth. So, I mean, of course, if the renew part of our main core business is working well, and if the new part is working well, then where is the problem? The problem happened in some of the pockets of our businesses, like in consulting, we had a significant decline, as I mentioned earlier, because of this couple of things. And then in India, our India business, we lost roughly $4 million of revenue. Degrew by $4 million, and Finacle had a very good Q4, and so Finacle had $2.5 million of decline. So these things all added up, and we'll focus more on them. BPO was flat compared to other businesses. So we have going forward in the course of this rest of this year and in the time ahead, we'll focus more on these businesses as well, in addition to continuing to fire on all cylinders on the main strategy. So I would not read more than that into it. Hi, Adit from CNBC TV 18. Yeah, I think you're right. What happens is this Q1 is always a quarter where attrition is high, and we've seen it over the last 4-5 years that there is a pickup of attrition of over 3 to 5 percentage points in this time, and this year is no different. Yeah, so I think, and most of the attrition is at the entry level people. Entry level. And I don't think that's a cause for concern. So looking at the trends, it seems quite natural. Thanks. Hey, Aditya from CNBC TV 18. Just wanted to understand, in terms of the geography spread, US is, I think, up 2.5% sequentially. Europe is, marginally down on a constant currency basis. So how does this tie into the comment that was made on, some large projects not ramping up? And are these early signs of issues around Brexit, and, are these telltale signs really? The slowdowns were across geography. I mean, our main business is in US and Europe, so that's where the slowdowns were. Not slowdowns, but the slow ramp up of the projects that I talked about. And then from a consulting perspective, the discretionary reduction and non-renewal in some areas. That's also in Europe, but this had nothing to do with Brexit or any of these kinds of what is the word? Macroeconomic, secular. The other fancy word is secular. So these had nothing to do with secular macroeconomic forces. This is simply client situation and our execution. In terms of Brexit, it is my personal view on it is that whenever walls get created between businesses and between institutions, this is not a good thing. Generally, from a societal perspective, but from a business point of view, actually, this is an opportunity for us. This is the more that systems become isolated and separate,
the more there is need for integration, there is need for interoperability, there is need for transparency, analytics, governance, regulatory work, etc. So long term, over time, assuming that Brexit happens, this is going to be a good thing for us. In the near term, there is a lot of anxiety around it. People are trying to figure out what it means and so forth. And so there is some uncertainty. But so far, there is no impact in business because of Brexit, and it hasn't. तो इन्फोसिस के विशाल सिक्का कुछ और क्लैरिफिकेशंस देते हुए उनका कहना है कि दुनिया भर में चल रही उथल पुथल से कहीं ज़्यादा इनके क्लाइंट्स की अपनी दिक्कतें हैं, कंपनी स्पेसिफिक कारण है जिसके चलते जो प्रोजेक्ट उन्हें मिले हैं वो उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जैसी उन्हें उम्मीद थी, और यही वजह है कि उन्हें अपने अनुमान घटाने पड़े। ग्रोथ कम नज़र आई है अनुमान के मुकाबले और आगे का गाइडेंस इस वजह से उन्हें कमज़ोर करना पड़ा है। और इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दर्शकों के सवालों के जवाब। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और अब सवालों के जवाब शुरू करते हैं। इंद्रपाल ने हमें देहरादून से कॉल लगाया, पूछिए इंद्रपाल जी। मेरे पास तो आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। जो मुझे समझ में आया है एक्सिस बैंक के 10 लॉट आपके हाथ में है 532 पर। हाँ, मैं 530 ये मैंने कैरी तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ मैं। ओके। इसे मैंने कुछ में लिए तब से कैरी करते आ रहे हैं, तो अब मुझे क्या निकल जाना चाहिए या प्रॉफिट बुक या वेट करना चाहिए अभी और इसका? राहुल क्या सलाह होगी? 532 पर एक्सिस बैंक में वायदे में पोजीशन इनकी है। मेरे हिसाब से ओवरऑल बैंकिंग इंडेक्स आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से ब्रेकआउट पे और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आउट परफॉर्मेंस रहे हैं ये रैली में, और सभी 52 वीक हाई के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो इसमें एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक थोड़ा लगाया जरूर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से एफएनओ में पोजीशन से लॉन्ग बिल्टअप हुए लास्ट 2 दिन से, तो स्टॉक मेरे ख्याल से 585 तक जा सकता है। तो वहाँ एक बार प्रॉफिट बुकिंग की मैं सलाह दूंगा। अभी नियर टर्म में अभी लॉन्ग्स बनाए रखने की मैं सलाह देता हूँ। ओके, अगला सवाल लेते हैं। मनमोहन सिंह रावत हमारे साथ हैं दिल्ली से। रावत साहब बताइए। सर मेरे पे धनलक्ष्मी बैंक के 1248 शेयर हैं, 28.50 के हिसाब से। ये होल्ड करना चाहिए कि सेल करना चाहिए? धनलक्ष्मी बैंक क्यों लिया आपने? हाँ जी, ये स्टॉक बहुत दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये स्टॉक लेने के पीछे कोई खास वजह थी? आपने कुछ सुना? सर ये एक सर आए थे यहीं पर TNVC चैनल पे ही, उन्हीं को देखा था हमने, तो उन्होंने कहा था कि ऊपर जाएगा स्टॉक। अच्छा, धनलक्ष्मी बैंक में फिलहाल आपने पोजीशन ली हुई है। समित बताइए क्या राय देंगे आप इन्हें? इस स्टॉक पे आप जैसे कि देख रहे हैं इस वक्त पिछले 6 महीने की चाल तो एक तेजी का रुख बना और अब फिर से थोड़ा करेक्शन के मूड में जा रहा है। क्या राय होगी आपकी, बने रहें या निकल जाए? देखिए प्रदीप, रिसेंटली हमने ऑलमोस्ट हर एक बैंक में अच्छे खासा एक मूवमेंट देखा है, स्पेशली मिड साइज जो बैंक्स है उनमें काफ़ी अच्छा एक रैली देखा हुआ है। तो ये स्टॉक ने भी रिसेंटली एक 17-18 के जो लोज है वहाँ से एक अच्छी खासी रैली देखी थी, बट लास्ट 5-6 दिनों में थोड़ा करेक्ट हो रहा है। बट ओवरऑल अगर हम लास्ट 1-1.5 महीने से उसका वॉल्यूम एक्शन देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हमें लग रहा है कि इसमें ये आने वाले कुछ वीक्स में ऊपर के लेवल्स मिल सकते हैं इनको, तो इनको बने रहना चाहिए। एक थोड़ा पोजिशनल व्यू होगा क्योंकि ये थोड़ा स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं होता है, ये थोड़ा लो बीटा स्टॉक है, तो इसमें बने रहना चाहिए। 24 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और ये स्टॉक जैसे वीकली चार्ट इसके दिख रहा है, ये 32 से लेके 36 के लेवल तक जा सकता है। ओके, तो होल्ड करने की सलाह 32 से 36 की और इसकी चाल रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 24 रुपीज़ पर। सुमन लता हमारे साथ लाइन पर है बीकानेर से। पूछिए सुमन। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम मैंने टाटा एलेक्सी के शेयर्स ले रखे हैं 600, 1736 रुपए और 62 पैसे की कॉस्ट पे। ओके। हाँ जी, तो मैम मुझे अभी निकल जाना चाहिए या अभी रुकना चाहिए? इसको शेयर बहुत डाउन आ गया इसकी कुछ में। और आपने क्या सोचा था जब पैसे लगाए थे, कितना टाइम दे पाएंगी? मैम अभी महीने 1.5 महीने तो और मैं रुक सकती हूँ। ओके, तो 1-1.5 महीने का टाइम और देने को तैयार है, लेकिन टाटा एलेक्सी में नुकसान हो रहा है और इन्होंने लिया भी इनफैक्ट पीक के आसपास। क्या सलाह होगी समित आपकी? 1736 की खरीद है ये, तो लगभग ये 90 रुपए गवा रही हैं आप।
अर्शदा, रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम फ्रेम ये स्टॉक में से एग्जिट की सलाह होगी अगर यहाँ से कोई भी बाउंस आता है तो। अगर उनके कॉस्ट के आसपास आता है तो वेल एंड गुड, तो वहाँ पे एग्जिट की सलाह होगी क्योंकि ये स्टॉक ने क्लियरली अंडर परफॉर्म किया है। बेंचमार्क इंडेक्स ने 8000 के लेवल से एक वर्टिकल रैली देखी है और ये स्टॉक क्लियरली जो उसके पीक्स बना है वहाँ से वो क्लियरली नीचे आ रहा है, तो वो अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है और वीकनेस है ये स्टॉक में। हालांकि 1600 के आसपास काफ़ी सपोर्ट है, तो मैं यही सलाह दूंगा यहाँ से अगर कोई भी बाउंस आता है उनके कॉस्ट के आसपास तो एक बार लॉस बुक कीजिए और एग्जिट कीजिए स्टॉक। ओके, टाटा एलेक्सी पर निकलने की राह है जब भी आपको उछाल मिले। गिरीश देवगन रायपुर से हैं हमारे साथ। गिरीश बताइए। जी सर, मेरे पास एसआर लिमिटेड के 2440 शेयर है 10.70 के भाव पे, तो मैंने इसे लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो अभी ये डाउन में है सर, मैं क्या करूँ इसके लिए? SRS लिमिटेड वो स्टॉक है जो आपने लिया है 10 रुपये 70 पैसे के भाव पे। हम वो स्टॉक देखने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, अगर हम अभी का भाव दिखा पाएँ आपको। 2500 शेयर्स हैं करीब करीब। समित इस वक्त 8.5 के आसपास चल रहा है, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक में कोई भी प्राइस मूवमेंट ना देख नहीं रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसका चार्ट स्ट्रक्चर तो क्लियरली लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है। ये ऑल टाइम लोज के आसपास ट्रेड हो रहा है। पता नहीं इसमें बाउंस आएगा कि नहीं, बट इसमें से एग्जिट की सलाह होगी। चले, तो इफ इट ऑल स्टॉक इन लेवल से ऊपर थोड़ा सा भी जाता है तो आप एग्जिट में की तैयारी में रहिएगा और टाइम ना वेस्ट करें इसके साथ। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और समित चौहान और राहुल शाह आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। नितिन हमारे साथ अपलाइन पर जुड़ गए हैं लखनऊ से। नमस्कार नितिन, बताइए क्या पोजीशन है? हेलो मैम। नमस्कार मैम, मेरे पास ONGC की एक लॉट है 240 की, जो मैंने 6 रुपए पे ली है। ओके। और एक ISI बैंक की है 520 रुपए की, जो आज मॉर्निंग में मैंने 2 रुपए 55 पैसे पे ली है। क्या करूँ, अभी इसका प्रॉफिट बुक करूँ, होल्ड कर लूँ? ओके। ONGC और ICICI बैंक, राइट? या मैम। राहुल, क्या सलाह होगी? पहले ONGC 240 का कॉल इन्होंने लिया है 6 रुपए पर, जो इनफैक्ट 2 रुपए 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है अब। अच्छा, जिस तरह से ओवरऑल ऑयल एंड गैस का आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है, तो एंटायर सेक्टर का अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है OMCs एज वेल एज ऑयल कंपनीज के ओवरऑल पैक के अंदर। तो मेरा मानना है कि ONGC में भी लास्ट 3 दिनों में अच्छा खासा लॉन्ग्स बिल्टअप देखने को मिले हैं, और मेरे ख्याल से स्टॉक जब तक 226 के नीचे बंद नहीं आता है लॉन्ग्स किए जा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि उनको लॉन्ग्स बनाए रखते हैं। ये जो कॉल ऑप्शन हैं उनके, हालांकि उनके लॉस में चल रही है अभी, तो 226 का स्टॉप लॉस से खड़े रहिए। अगर वो ब्रेक होता है तो एग्जिट कर दीजिए, नहीं तो मेरे ख्याल से वापस 240 तक ONGC आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक ओवरऑल अगेन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिली है। तो कल के सेशन में ICICI में अच्छे खासे लॉन्ग्स भी जुड़ते हुए दिखे थे। तो मेरा मानना है कि ICICI बैंक में भी 256 का स्टॉप लॉस से लॉन्ग खड़े रहिए। अगर वो ब्रेक होता है तो एग्जिट कर दीजिए इसमें। तो ये फिलहाल आपके लिए पोजीशन, दोनों ही स्टॉक्स को होल्ड करें, इन पोजीशंस को आप होल्ड करें। बहुत बहुत शुक्रिया समित, हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन राहुल शाह से चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे आखिरी सौदा और शुरुआत होगी लॉन्ग या शॉर्ट से।